students, how are you all? I hope you all are preparing well for your NEET and JEE exam. Welcome back to Rank Boost Physics. Today, in this class, we are going to talk about one of the 7 fundamental quantities in physics. What are fundamental quantities? Fundamental quantities works as a basic brick in physics. With the help of these 7 fundamental quantities, we have built some major concepts of the physics. All the major concept, all the major quantities, any xyz, any quantity in physics can be broken down into these 7 fundamental units. So fundamental units works as a basic brick. Okay, these are the fundamental units of the physics. And what are those fundamental units? There are 7 fundamental units. What are those? Mass, length, time, temperature, current, and luminous intensity, and last one is the quantity of the matter. On those 7 fundamental quantities, we have derived all the formulas of physics. Okay, so in this class, we are going to talk about one quantity among those 7. That is what the temperature is. What is the temperature? It is simply the hotness and coldness of the body. मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत बेसिक चीजें लिखी हैं अबाउट टेम्परेचर. लेट्स सी हमने यहाँ पे क्या लिखा है. यस, फॉर फिजिक्स वी हैव रिटन फॉर टेम्परेचर इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. इट डिटरमाइन in which direction the heat will flow into the body. In which direction heat will flow means we know that the heat is a form of energy that flows from one body to the another. That particular heat flows from higher temperature of the body to the lower temperature one. So what temperature is? It is the degree of hotness and coldness of the body. Acha, in physics we have always assigned a symbol to any of the physical quantity, and for temperature we have used the symbol capital T. Wherever you see capital T, that should be temperature. Sometimes time could also be written as for capital T, but majorly we denote temperature with the symbol denoted by capital T. Now the SI unit of temperature is all we know, Kelvin. Kelvin is what? The scientist name na. नेक्स्ट है कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस मोर कॉमन यूनिट है जो हम डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं. अगेन मैंने वही चीज लिखी है. इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स. नेक्स्ट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर इज व्हाट? मास का फैक्टर नहीं है उसमें, कोई लेंथ नहीं है उसमें, तो डेफिनेटली यार टेम्परेचर ही तो आएगा. तो फंडामेंटल यूनिट जो टेम्परेचर है उसकी डायमेंशन क्या बनकर आएगी? m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0 एंड t रेज टू पावर 1. अगेन थर्मोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं. जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा है, हाउ डज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर गेट चेंजेस व्हेन वी प्लेस द बॉडी इनटू द हॉटर एनवायरनमेंट और इनटू द कोल्डर वन. आपने +2 में या +1 में, मेजरली +1 में व्हेन वी टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, we see how does the quantities get changed, like how does the pressure will change, how will the volume of the object will change when we place the object into the hotter environment or in the colder environment, right? So next, yes, temperature. There are 3 different scales of temperature. What are those? Degree Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Kelvin is what? It is the SI unit of the temperature. Yes. So yes, अब हमारे पास ना 3 स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन. सबसे पहले तो डिग्री सेल्सियस, नेम ऑफ द साइंटिस्ट. फ़ारेनहाइट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट अगेन. केल्विन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये ज्यादातर ट्रेंड है कि जिस साइंटिस्ट ने उसके बारे में इन्वेंशन करी, जिस साइंटिस्ट ने उस चीज के बारे में बताया, हम उसी के नाम पे उस चीज की एसआई यूनिट रख देते हैं. जैसे कि फोर्स को न्यूटन ने बताया, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज व्हाट न्यूटन इज. प्रेशर के बारे में पास्कल ने बताया, तो प्रेशर की एसआई यूनिट इज पास्कल. अगर बाय चांस इन फ्यूचर आपको किसी चीज की यूनिट ज्योति मिल जाए, दैट मीन्स उस चीज को ज्योति मैम ने बताया होगा. सिमिलरली आपका नाम जो भी आप कमेंट डाउन मुझे कर सकते हो, लाइक आप जिस भी क्वांटिटी के बारे में बताओगे उसी क्वांटिटी का नाम आपके नाम के ऊपर रख दिया जाएगा, या उस क्वांटिटी की एसआई यूनिट आपके नाम पे रख दी जाएगी.
ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने बात करी 3 स्केल्स के बारे में, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। नाउ देखो ना बच्चे, हमारे पास एक डिफरेंट स्केल्स हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर मेजर करने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास 2 तरह के स्केल होते हैं। या तो वो आपके बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल में बता सकता है, या तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में बता सकता है। ज्यादातर केल्विन स्केल हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में नहीं यूज करते, क्योंकि ये काफी वास्ट स्केल है। तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट को हम आराम से ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को कैलकुलेट करने में कर सकते हैं। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करा डिग्री सेल्सियस में, और किसी और को मेरी बॉडी का टेम्परेचर जानना है डिग्री सेल्सियस में नहीं बल्कि फ़ारेनहाइट में, तो यार 1 डिग्री सेल्सियस से दूसरे लाइक स्केल में कन्वर्ट करने का तरीका तो आना चाहिए ना। तो उसी तरीके को कि मतलब अगर मैंने एक स्केल में मेजर करा उस क्वांटिटी को, मैं दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? सिंपली, अगर हमारे पास मास है 1 kg, क्या हम इसको ग्राम्स में नहीं लिख सकते? 1 kg ऑफ द मास वुड बी इक्वल टू 1000 ग्राम। जैसे मैंने बात करी 1 आवर की, तो हम इसको 60 मिनट्स में भी तो लिख सकते हैं, हम इसको 3600 सेकेंड्स में भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या है? मास की यूनिट किलोग्राम होना, ग्राम होना, मिनट्स टाइम की यूनिट मिनट होना, आर होना, सेकंड होना, ये अलग अलग स्केल्स हैं जिसमें हम इन चीजों को मेजर करते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर के लिए हमने 3 स्केल्स स्पेसिफाई करे हुए हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। नाउ जब भी हमने डिग्री सेल्सियस स्केल लेना है, तो डिग्री सेल्सियस स्केल की ना हमने रीडिंग मार्क डाउन करनी है। ऑफ कोर्स, जैसे हमारे पास थर्मोमीटर होता है, जब हम अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो एक थर्मोमीटर यूज करते हैं। थर्मोमीटर को हम अपने बॉडी के साथ टच करेंगे और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो एक्यूरेटली बता देगा। डेफिनेटली उसके अंदर मर्करी होती है, मर्करी राइज अप करेगी, वो जहां पर जाकर रुक जाएगी, मुझे उसकी रीडिंग बतानी होगी। वहां पे मार्किंग होती है मैम, 32, 33, 34, 45, इस तरह से मार्किंग होती है। हम वहां पे आराम से चेक करके बता देंगे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। नाउ हमने ये जो स्केल बनाना है, आपको यहाँ पे 3 स्केल दिख रहे होंगे, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे मैंने 3 स्केल्स बनाए हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन अगेन, और इन तीनों स्केल पे मैंने कुछ नंबर्स नोट डाउन करे। दैट इज, जैसे आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पे दिख रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर यहाँ पे दिख रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने ये जो टेम्परेचर नोट डाउन करे हुए हैं, मैंने ये नोट डाउन करे हुए हैं फॉर वाटर सिंपली। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट वी नो इट इज 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो डिग्री सेल्सियस स्केल पे है ना मैम। अगर हमने इसको केल्विन स्केल में या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में देखना हो तो क्या होगा? केल्विन स्केल पे वही टेम्परेचर होगा 273.15 केल्विन का, और होटेस्ट टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री, जहां पे स्टीमिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, वहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कैसे लिख सकते हैं? 373.15। इसी तरह से इफ आई आस्क अबाउट फ़ारेनहाइट स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल पे मिनिमम टेम्परेचर आइस पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा? 32 फ़ारेनहाइट का, और हमारे पास स्टीम पॉइंट क्या बनकर जाएगा? 212 फ़ारेनहाइट का। अब मैम हमें कैसे पता लगेगा कि यार 0 डिग्री सेल्सियस को 32 रखना है, या 32 फ़ारेनहाइट को हम 273.15 केल्विन लिख सकते हैं? तो इसके लिए बच्चे हमने सिंपली एक फॉर्मूला नोट डाउन करना है। सिंपल, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। आप किसी भी टेम्परेचर स्केल से किसी भी दूसरे टेम्परेचर स्केल में बहुत आराम से जंप कर सकते हैं। सो व्हाट दैट फॉर्मूला इज, दैट इज रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। समझाते हैं, सब्र रखो। रीडिंग मीन्स, लेट्स से आपको कन्वर्ट करना है 10 डिग्री सेल्सियस को इनटू फ़ारेनहाइट। मुझे ये चेक करना है कि जब डिग्री सेल्सियस स्केल 10 डिग्रीज की रीडिंग दे रहा होगा, उस टाइम पे फ़ारेनहाइट स्केल कितनी वैल्यू देगा। ठीक है, अच्छा, मतलब कि मुझे रीडिंग तो डिग्री सेल्सियस स्केल की पता है, आइस पॉइंट मुझे डिग्री सेल्सियस स्केल का पता है, स्टीम पॉइंट पता है डिग्री सेल्सियस स्केल का, आइस पॉइंट पता है डिग्री सेल्सियस स्केल का। ये सारी चीजें एक बार मैं लिखूंगी डिग्री सेल्सियस, एज मुझे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इक्वेट में मुझे ये सारी चीजें किसके लिए लिखनी पड़ेगी? फ़ारेनहाइट के लिए। जैसे यही एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ली, कन्वर्ट 10 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। कैसे करेंगे? सेम यही वाला फॉर्मूला लिखे। रीडिंग क्या है डिग्री सेल्सियस स्केल पे? 10,
माइनस आइस पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस स्केल पे 0 अपॉन स्टीम पॉइंट डिग्री सेल्सियस स्केल पे हमने क्या मार्क करा हुआ है 100 और अगेन आइस पॉइंट हमारे पास डिग्री सेल्सियस स्केल पे क्या है इट इज 0। ये किसके बराबर बनेगा मतलब 10 डिग्री सेल्सियस किसी फ़ारेनहाइट के बराबर बनेगा माइनस आइस पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल का क्या है 32 अपॉन स्टीम पॉइंट कितना है फ़ारेनहाइट स्केल पे इट इज 212 माइनस आइस पॉइंट कितना है 32। हम इसको सॉल्व करें ये बनेगा 10 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू f माइनस 32 अपॉन 180। मैं इसको सोल्व करती हूँ ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूं यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूं दैट मींस 18 इज इक्वल्स टू f माइनस 32। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे इसकी वैल्यू आएगी 18 प्लस 32 तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट 50 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 10 डिग्री सेल्सियस की अगर आप बात कर रहे हो तो आप कितने फ़ारेनहाइट के बारे में बात कर रहे होगे 50 फ़ारेनहाइट के बारे में बात कर रहे होगे। देखो ये चीज इजी थी। सेम इसी तरह से मैं डिग्री सेल्सियस स्केल के किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकती हूँ इनटू केल्विन और अगेन केल्विन को डिग्री सेल्सियस केल्विन को फ़ारेनहाइट हम तीनों में से किसी भी चीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बस हमें पता क्या हो हमें याद क्या हो आइस पॉइंट और दूसरा स्टीम पॉइंट तीनों स्केल्स के ऊपर। तो मैंने ये फॉर्मूला जो लिखा क्या आपको समझ में आया पक्का। अच्छा नेक्स्ट है देखो मैंने इसी फॉर्मूला को आगे फर्दर लिखा हुआ है any reading on degree Celsius scale minus ice point on degree Celsius scale upon 100 that is the same point on the degree Celsius scale minus ice point on the degree Celsius scale would be equal to Fahrenheit scale पे कोई भी random reading minus Fahrenheit scale का ice point upon steam point on the Fahrenheit scale minus ice point on the Fahrenheit scale again it would be equal to अगर मैं केल्विन स्केल पे जंप करूं एनी टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट ऑफ द केल्विन स्केल। आपको बस सिंपली इस एक चीज को इस फॉर्मूला को याद रखना आपको या आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आइस पॉइंट क्या है स्टीम पॉइंट क्या है एवरीथिंग वुड बी इजी। आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। गॉट माय पॉइंट और नॉट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 डिग्री चेंज इन द डिग्री सेल्सियस है ना 1 डिग्री चेंज डिग्री सेल्सियस चेंज मतलब जब भी हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर का चेंज आएगा तो केल्विन स्केल में भी हमारे पास कितना चेंज आएगा 1 डिग्री सेल्सियस का। मतलब कि अगर मैं बोल रही हूं कि मैं जंप करी फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस देखते हैं यहाँ पे मैं कहां से कहां जंप करी हूं फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस लेट्स से 0 डिग्री पे हमारे पास टेम्परेचर केल्विन पे क्या था 273.15 केल्विन और ये हमारे पास जंप करने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वेट बनेगा 274.15 केल्विन। मतलब अगर यहाँ पे चेंज हमारे पास डिग्री सेल्सियस स्केल पे चेंज हमारे पास 1 डिग्री का आया है तो केल्विन पे भी हमारे पास चेंज कितने का बनकर आएगा 1 डिग्री केल्विन का ही चेंज बनकर आएगा। सिमिलरली सेम वैसे अगर मेरे पास 1 डिग्री चेंज सेल्सियस स्केल पे है 1 डिग्री चेंज ही केल्विन स्केल पे बनकर आएगा और 1.8 डिग्री का चेंज बनेगा ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स 1 डिग्री चेंज ऑन डिग्री सेल्सियस would be equal to 1 degree change on Kelvin scale and 1.8 degree change on the Fahrenheit scale. Got my point? Now coming to the next topic that is the graphical method. हमारे पास इस टॉपिक में ना जेन्युइनली क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेई में। वो क्वेश्चन तुम्हारे पास जैसे मर्जी दे देगा इधर तुम्हें कन्वर्ट करने को दे देगा 1 डिग्री एक चेंज से दूसरे स्केल के अंदर और आपको ग्राफिकल मेथड पे भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्लॉट बनाया हुआ है बिटवीन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। मैंने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करा है डिग्री सेल्सियस को वाई एक्सिस पे प्लॉट करा है फ़ारेनहाइट स्केल को। इन दोनों के बीच में मैंने बनाई है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइक इस ग्राफ की हेल्प से हम फॉर्मूला रिड्यूस कर रहे हैं दोबारा से डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का। मैंने क्या लिया मुझे पता है जब 0 डिग्री है ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल वहां पे मुझे केल्विन पे कितनी वैल्यू मिल रही थी 32 डिग्री की। एम आई राइट और रॉन्ग? जब हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू था तो फ़ारेनहाइट पे मुझे क्या वैल्यू मिल रही थी 212। देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या मिली थी 212। कब मिली थी जब टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस का।
यहाँ पे वैल्यू क्या मिली थी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब वैल्यू हमारे पास टेम्परेचर स्केल डिग्री स्केल पे कितनी थी 0 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैच करूंगी तो डेफिनेटली हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। और अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो इस स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें, इवन इसका फॉर्मूला भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिया है, मैंने लिया है ये पॉइंट्स जिनको मैंने मार्क करा है A B C D E, इस तरह से मैंने पॉइंट्स को मार्क करे। हम यहाँ पे दो इनको ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैंने जो ट्राइंगल लिया दैट इज ABE। ध्यान से देखो ABE का जो ये ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला है। दूसरा ट्राइंगल लिया ACD का, ACD का मैं मार्क करती हूँ किसी दूसरे पेन से। ACD का जो हमने ट्राइंगल लिया वो देखो ये बड़े वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला बड़े वाला ट्राइंगल है। एक तो हमने ये छोटा पर्पल वाला शेड जो मैंने करा है वो ट्राइंगल बनकर आएगा, और ये वाला एक तो पिंक वाला जो मैंने अभी शेड करा है ये ट्राइंगल बनेगा, और ये ग्रीन वाला जो ये बड़े वाला ट्राइंगल है ना ADC का, दो ट्राइंगल बनकर आएंगे। इन दोनों ट्राइंगल को देखो हम सिमिलर बोल सकते हैं। सिमिलर कैसे मैम, एंगल A जो है EAB एंगल A आया, सिमिलरली DAC इसमें भी एंगल A आया, दैट मींस एंगल सेम है इसमें। सेकेंडली मैं क्या बोल सकती हूँ, ये वाला एंगल इसमें भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल इसमें भी 90 डिग्री, 90 डिग्री अगेन। अगर ट्राइंगल के दो एंगल सेम है तो डेफिनेटली तीसरा भी इक्वल होना चाहिए। चमका, 10th क्लास में हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चों, मैंने ये लिया है AEB वाला ट्राइंगल, और दूसरा मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिया है ADC वाला। मैंने क्या बोला, ये भी एंगल A है, ये भी एंगल A है, सेम होने चाहिए। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सेम होने चाहिए। अरे यार अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा भी तो सेम बनकर आएगा, दैट मींस ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, मतलब एंगल सेम है। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती थी कि साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वेट कर सकते थे, बराबर निकल के आता था। सेम वही चीज मैंने यहाँ लिया। मैंने कौन सी साइड्स कंसीडर करी है, AB किसके बराबर बनेगी, मतलब AB अपॉन AC, बेस बाय बेस का रेशियो वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर का रेशियो वुड बी इक्वल टू हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस का रेशियो। यहाँ पे हमें एक तो इसके बेस की साइड की जरूरत है, और दूसरा हमें जरूरत है बच्चे परपेंडिकुलर वाली साइड की। DC मार्क कर दूं या फिर मैं मार्क कर दूं EB की। इसी में मैंने भी वैल्यू निकाली। देखो AB ये वाली जो साइड है ना AB वाली, इस साइड को मैं कैसे लिख सकती हूँ C-0। इसी तरह से AC को मैं क्या लिख सकती हूँ 100-0। देखो मैंने सेम ये लिखा है, AB को लिखा C-0, AC को लिखा 100-0। सिमिलरली EB को हमने क्या लिखा है, EB को लिखा F-32, और DC को मैंने क्या लिखा है 212-32। देखो सेम वही वैल्यूज लिखी है। मैंने इसको सॉल्व करा, C-0 दैट इज C, 100-0 दैट इज 100 इज इक्वल्स टू F-32 अपॉन 212-32 वुड बी 180 डिग्रीज। तो इन दोनों को जब मैंने इक्वेट करा तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनकर आया। और ध्यान से देखो यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था। देखो C-0 अपॉन 100-0 F-32 अपॉन 212, ये क्या था इसका रैंडम रीडिंग आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट। सिमिलरली रैंडम रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, मतलब कि दोनों तरीके हमारे पास है, हम जिस मर्जी तरीके से इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। समझ में आई है, इजी लगा है, इजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है। इस चीज का यूज आपको भले डायरेक्टली ना आए, आपको डायरेक्टली ना पूछे कि कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में या केल्विन स्केल में, पर आपको क्वेश्चन में यूनिट का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि बच्चा सबसे ज्यादा गलती कहाँ पे करता है, बच्चा क्वेश्चन रीड कर देता है, बच्चे को आंसर सब कुछ निकल जाता है, बच्चे को फॉर्मूला सही से नोट कर जाता है कि हमने कहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करना है, बच्चा यूनिट कन्वर्ट करना भूल जाता है। तो अगर दो टेम्परेचर आपको गिवन है, दोनों के दोनों SI में या फिर केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में नहीं गिवन, तो वी हैव टू कन्वर्ट वन ऑफ देम इनटू द अनदर। उसके लिए हमें मेथड पता होना चाहिए, और वही मेथड अभी तक हमने सीखा है। समझ में आई है, पक्का है। चलो इसके क्वेश्चन करके देखते हैं हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वलाइजेस, मतलब कितने टेम्परेचर पे हमारे पास जो टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का इक्वेट हो जाएगा, मतलब जो डिग्री सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर है वही हमारे पास फ़ारेनहाइट पे निकल कर आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल भी है?
देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था, याद करवाओगे क्या फॉर्मूला था? C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। C एनी रीडिंग्स 0, आइस पॉइंट 100, स्टीम पॉइंट 0 अगेन आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। अच्छा, उसने क्या बोला कि भाई कितने टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस वुड इक्वलाइजेस फ़ारेनहाइट। तो मान लेते हैं ना कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के इक्वल बनेगा किसी x टेम्परेचर पे, मतलब C और F की जगह पे आई कैन सब्स्टिट्यूट x, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इट वुड बी x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो ये क्या बनेगा? x अपॉन 100 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 180। तो ये 0 से 0 हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। तो ये क्या आएगा? x इज इक्वल टू 5/9 x माइनस 32। बस इसी चीज को अब हमने क्या है, x की वैल्यू तो निकालनी है, सिंपल इक्वेशन बन गई है। ये क्या बनेगी? x इज इक्वल टू 5/9 x माइनस 5/9 इंटू 32। ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 5/9 32 को मैं इधर लेकर आ जाऊंगी, 5/9 x माइनस x को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास कितनी वैल्यू बनेगी? 15, और ये बन जाएगा 160 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5x माइनस 9x अपॉन 9। ये जो वैल्यू हमारे पास बन के आ रही है, ये वैल्यू किसके अंदर बनकर आएगी? नेगेटिव। और चेक करो ना, नेगेटिव वाला तो ऑप्शन ही है, आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। समझ इजी है? देखो, आपको नीट और जेई में ना हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको सारा का सारा सोल्व करना पड़े। काफी बार आप ऑप्शन को निग्लेक्ट करके भी आंसर अपना निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वलाइजेस टू अ डिफरेंस ऑफ दोस 4 ऑप्शंस। और ऑप्शंस में चेक करो, वो फ़ारेनहाइट 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 नहीं है। उसने क्वेश्चन क्या बोला? उसने बोला डिफरेंस लिया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल पे, वो 25 डिग्री सेल्सियस का बनकर आया। बताओ सेम टेम्परेचर का डिफरेंस अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल पे देखूं तो वो कितना बनकर आएगा? याद है ना, हमने करा था, हमने क्या बोला था? जो भी डिफरेंस बनकर आएगा डिग्री सेल्सियस स्केल पे, लाइक 1 डिग्री चेंज ऑन द डिग्री सेल्सियस वुड बी इक्वल टू 1.8 डिग्री चेंज ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। याद है मैंने करवाया था? अरे यार, यहाँ करवाया तो था। ये क्या लिखा है? 1 डिग्री चेंज ऑन द डिग्री सेल्सियस स्केल वुड बी इक्वल टू 1.8 डिग्री चेंज ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। रिमेंबर? तो ठीक है, हमें यहाँ पे चेंज कितना गिवन है? 25 डिग्री सेल्सियस का। तो यार अगर 1 डिग्री इतने के बराबर है तो 25 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा? मैं 1.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 25 डिग्री को, इतना ही करना पड़ेगा हमें। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो इसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं क्या? अब 125 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 40, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20, ये आएगा 5, ये आएगा 2, तो इट वुड बी 450। तो ये वैल्यू बनकर आएगी 450। एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी बनकर आएगी? 45 डिग्री का फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इजी। मतलब अगर 25 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस मैं ले रही हूँ ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, तो वही डिफरेंस फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना बनकर आएगा? 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का। इजी पीजी। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन सेज which curve in the figure represent the relation between the Celsius and the Fahrenheit temperature? कि यार इनमें से कौन सा ऐसा कर्व है जो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्केल को रिप्रेजेंट करता है? करें। अच्छा, कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं होगा? याद है हमने पहले करा था जो हमने, अरे फिर भूल जाते हो तुम लोग, ग्राफ मेथड हमने नहीं करा था। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो हमने एक इक्वेशन डिराइव करी थी, ये वाली इक्वेशन। इसी इक्वेशन को यूज करें। ये इक्वेशन क्या बोलती है? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। सेम यही चेंज हम लेकर चलेंगे, इक्वेशन लेकर चलेंगे। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 32। करेक्ट। अच्छा देखना, ये जो ग्राफ है ना, बड़ा स्मार्टली प्ले करा गया है इस ग्राफ के साथ। यहाँ एक्स एक्सिस पे रखा गया है फ़ारेनहाइट को, वाई एक्सिस पे किसको रखा गया है? डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर मैं ये ध्यान से देखूं, इसको थोड़ा सा ना ओपन करते हैं ब्रैकेट को। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 f माइनस 5/9 इंटू 32। अगर हम ध्यान से यहाँ देखें, क्या मैं इसको स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर कर सकती हूँ? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पढ़ा था ना।
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, होती है कि नहीं? अच्छा चलो एक बार याद करते हैं। ये जो इक्वेशन थी ये x एक्सिस था, ये हमारे पास कोई y एक्सिस था, तो इस तरह की कर्व को हम स्ट्रेट लाइन कर्व बोलते थे, जिसके लिए इक्वेशन हम इस तरह की डिराइव कर सकते थे, जहां पे y वाज द मतलब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, m था स्लोप, x था x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, c था इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। एम आई राइट? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो y एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस को रखा गया, तो ये इक्वेशन क्या बननी चाहिए? y मतलब इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ y के साथ, इज इक्वल टू इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ m के साथ, इसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ x के साथ, माइनस इसको मैं कंपेयर किसके साथ कर सकती हूँ? c के साथ। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या मैं बोल सकती हूँ इस ग्राफ की स्लोप हमारे पास 5/9 के बराबर बनकर आएगी, और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बनकर आएगा? y इंटरसेप्ट नेगेटिव में बन रहा है। y इंटरसेप्ट नेगेटिव में बनने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ हमारे पास होगा ये माइनस y एक्सिस पे कट करना चाहिए। देखिए एक बार चेक करो, ये जो c ऑप्शन है क्या ये प्लस, ये देखना ये जो c कर्व है ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट नहीं देखना, y एक्सिस का इंटरसेप्ट देखना। अगर मैं y एक्सिस पे देखूं तो ये तो प्लस y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, दैट मींस c वाला नहीं हो सकता। मोर ओवर हमारे पास जो स्लोप है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए थी। यहाँ तो स्लोप की वैल्यू देखो, थीटा हमारे पास क्या, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब इसकी तो स्लोप ही हमें नेगेटिव गिवन है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। सिमिलरली ये देखो, ये जो बी पॉइंट है ये भी कौन सी एक्सिस पे कट कर रहा है इसको? प्लस वाई एक्सिस पे। अगेन पिक्चर से आउट हो गया। डी वाला जो है ये कट कर रहा है भाई माइनस वाई एक्सिस पे। तो एक कंडीशन तो हो गई कि इंटरसेप्शन पॉइंट नेगेटिव वाई एक्सिस पे होना चाहिए, नेगेटिव वाई एक्सिस पे वेल एंड डन, काम चल जाएगा। बट क्या इसकी स्लोप पॉजिटिव है? वो चेक करें। स्लोप कैसे बनाते थे? बढ़ती हुई एक्स एक्सिस से हमें चेक करना होता था एंगल। यहाँ पे एंगल है हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब tan थीटा नेगेटिव जाएगा, मतलब स्लोप नेगेटिव जाएगी। हमें तो स्लोप कैसी चाहिए भाई? पॉजिटिव चाहिए। तो डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। अब ए ऑप्शन चेक करें, सारी चीजें टिक मार्क करता है भी है कि नहीं। ए ऑप्शन में अगर मैं देखूं, ए ऑप्शन का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस पे नेगेटिव पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब वाई इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव, मतलब एक पार्ट तो हो गया क्लिक। दूसरा चेक करते हैं कि इसकी स्लोप नेगेटिव, क्या इसकी स्लोप हमारे पास पॉजिटिव बन के आ भी रही है कि नहीं। अगर मैं स्लोप की बात चेक करूं तो देखना ये वाली जो एक्सिस है हमारे पास, ये वाला कर्व हमें ए का गिवन है ना, ये ए का कर्व बढ़ती हुई एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल मार्क कर रहा है, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्रीज, मींस इसकी जो स्लोप की वैल्यू बनकर आएगी इट वुड बी पॉजिटिव। कंडीशन भी तो यही थी इस इक्वेशन के लिए, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए थी, इंटरसेप्ट नेगेटिव का चाहिए था। तो डेफिनेटली जो ए कर्व है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है करेक्ट रिलेशन बिटवीन द ग्राफ ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। समझ में आया? इजी था, देखो इजी था, मानना पड़ेगा तुम लोगों को, इजी था। बस थोड़ी बहुत ही चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर वो ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। इसी तरह के और भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं, काफी तरह के क्वेश्चन है। आपको डिग्री सेल्सियस नहीं देगा, फ़ारेनहाइट नहीं देगा, केल्विन स्केल नहीं देगा, कोई रैंडम स्केल दे देगा। कोई रैंडम स्केल अगर देगा तो वो तुम्हें डिफाइन कर देगा उसका आइस पॉइंट क्या है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। किसी रैंडम टेम्परेचर पे बताओ डिग्री सेल्सियस पे किसके बराबर बनकर आएगा, सेम उसी तरीके से तुम उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और चाहिए, इसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन और चाहिए या इस पे और एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक सम अनदर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, टिल देन पेपर के लिए प्रिपेयर करते रहिए। नीट और जेई का एग्जाम आने वाला है, हमें इस बार सीट चाहिए ही चाहिए और हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।